very good morning to all of you. So yesterday we started off with our new chapter, that is periodic table. We did about the brief history of periodic table as to how previous attempts were made to develop the periodic table, and we did in all those attempts the main just basis the periodic table was developed. That main जो basis सीगा बच्चे, that was the atomic mass. We were on Mendeleev's periodic table, a major breakthrough, and we did about the advantages, कि the successes of Mendeleev's periodic table, कि Mendeleev the periodic table ने किहड़ियां चीज़ां आसान कर दियां. We did कि कुछ कि जो elements उस time ते discovered सी 56 elements, उन्हां दी study became systematic. We also did कि उसने कुछ नवीं elements नु predict भी करता बच्चे, है ना? It helped in the prediction of newer elements, and then we also did कि Mendeleev corrected the atomic masses of some elements जिन्हां दे उस time ते गलत सीगे. So these were the advantages या successes of Mendeleev's periodic table. Today we need to do the drawbacks. Naturally बच्चे अगर drawbacks सीगे, है ना, ताइयों देखो अपन नवा periodic table बनाया जिसदा नवा basis सीगा. So now कि Mendeleev's periodic table च किहड़े-किहड़े drawbacks आ, उन्हां विचों आपां दो drawbacks already discuss कर चुके हैं, anomalous pairs and isotopes, but I'll repeat it again. So now first is position of hydrogen, जो आज भी है, even in the modern periodic table, जिद्दां कि मैं सानू कल कहा सी कि ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ. ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਆਪਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਦ ਐਕਸੈਪਟਡ ਫਾਰਮ, ਬਟ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ. ਤਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਫ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਅੱਜ ਵੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੀਲ ਡੂ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਕੈਨ ਬੀ ਪਲੇਸਡ ਵਿਦ ਲੀਥੀਅਮ ਸੋਡੀਅਮ ਆਲਸੋ ਐਂਡ ਵਿਦ ਫਲੋਰੀਨ ਕਲੋਰੀਨ ਬ੍ਰੋਮੀਨ ਆਲਸੋ. ਯੂ ਗੈਟਿੰਗ ਅ ਪੁਆਇੰਟ? So position of hydrogen was not fixed in the Mendeleev's periodic table. वो आज भी fix नहीं है, ठीक है? Second is anomalous pairs, कि कुछ elements दे pairs आगे पीछे हो गए according to atomic masses, increasing atomic masses वो किसी होर जगह ते आने सी, but according to properties उन्हां नूं किते होर place कीता गया, जिद्दां कि आपां ने कल कीता सी कि argon दा atomic mass was 40, then came potassium 39 and then again calcium 40. सो उसके अकॉर्डिंग तो पोटैशियम होना चाहिए सी नोबल गैसेस च, कैल्शियम ते आर्गन जो कि एक मेटल है एक नोबल गैस है, दोनों की एक पोजीशन होनी चाहिए सी. सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो कुछ इदां दे पेयर्स बने जिसनों मेंडलीव ने अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज ठीक तो करता, बट जो उसका बेसिस सी कि अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक मास उसनों एक्सप्लेन नहीं कर सकिया. थर्ड इज पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स. सो अगर मैं एटॉमिक मासेस के अकॉर्डिंग चलना तो बच्चे एक एलिमेंट को पता नहीं कितनी पोजीशंस देनियां पैणगियां. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम, ठीक है? सो 3 अलग-अलग पोजीशंस देनियां पैणगियां हाइड्रोजन नु. अगेन वी हैव कार्बन 12, 13 एंड 14, सो 3 पोजीशंस कार्बन नु देनियां पैणगियां. क्लोरीन हैज 2 आइसोटोप्स 35 एंड 37, 2 पोजीशंस क्लोरीन नु देनियां पैणगियां. सो लगभग सारियां एलिमेंट्स दे आइसोटोप्स मिलदे हैं बच्चे आपां नु, तां उन्हां सब नु आपां नु अलग-अलग पोजीशंस देनियां पैणगियां. सो दैट कैन नॉट बी जस्टिफाइड. सो हुन आपां कुछ होर डिसएडवांटेजेस पढ़ते हैं. देखो, सिमिलर एलिमेंट्स वर ग्रुप्ड डिफरेंटली व्हाइल डिसिमिलर एलिमेंट्स वर प्लेस्ड इन सिमिलर ग्रुप्स. कुछ ऐसी एलिमेंट्स जिन्हां दी प्रॉपर्टीज आपस च बिल्कुल भी मेल नहीं खांदियां सी, उन्हां नूं इकट्ठे रख दिता गया इको ग्रुप च. कुछ ऐसी एलिमेंट्स जिन्हां दी प्रॉपर्टीज आपस च मेल खांदियां वो अलग-अलग ग्रुप्स दे विच सी. फॉर एग्जांपल मैं क्लासिकल एग्जांपल दिंदा है. मेंडलीव ने लिथियम, सोडियम, पोटैशियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये 6 ਦੀਆਂ 6 एलिमेंट्स ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕੋ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ. ਬੱਚੇ ਹੁਣ these are the softest metals. पोटैशियम ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਾਈਫ ਨਾਲ ਵੀ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਹੋ, and these are one of the hardest metals. gold, silver, copper, hardest of the metals. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਚ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਮਿਲਰ ਗਰੁੱਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਕੱਠੇ ਪਲੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ. ਕਾਪਰ ਐਂਡ ਮਰਕਿਊਰੀ,
ਹੁਣ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਲਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀਆਂ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਰਕਰੀ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਕੁਇਡ ਮੈਟਲ, ਬਟ ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਆਰ ਕੁਆਇਟ ਸਿਮਿਲਰ, ਤੇ ਇਹ ਦੋ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਨੈਕਸਟ, ਕਾਜ਼ ਆਫ ਪੀਰੀਓਡਿਸਿਟੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂਡਲੀਜ਼ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਲਾਅ ਕੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਦਾ ਇਨ ਦ ਫਾਰਮ ਆਫ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ 'ਚ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਬਟ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਿਆ? ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਿਮਿਲਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਿਮਿਲਰ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਊਟਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਸੇਮ, ਹੈ ਨਾ। जो लीथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम है, सब दे आउटर शेल सिंगल इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम फैमिली दो इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन फैमिली 6 है, नाइट्रोजन दे विच 5 है। सो उनकी प्रॉपर्टीज आर सेम। आप रीजन भी दे रहे हैं, की रीजन है कि आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज सेम। जबकि मैंडलीव्स दा जिहड़ा पीरियोडिक लॉ सीगा दैट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, सो वो इस चीज नूं एक्सप्लेन नहीं कर सकिया कि प्रॉपर्टीज सेम क्यों है। पोजीशन ऑफ लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स, सो ये आज दी डेट भी ड्रॉबैक ही है। तुसीं देखिया होगा ना, आप जिहड़ा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाने हैं, मैं एक रफ आउटलुक बनाना है उसका, तो तुसीं देखिया होगा कि वो इदां जे बनिया हुंदा। सो नीचे दो लाइन्स हुंदियां है ना, ऊपर वाली लाइन नूं आपां बोलदे हैं, ए वाली लाइन नूं लैंथेनॉइड्स, नीचे वाली लाइन नूं आपां बोलदे हैं एक्टिनॉइड्स। पहला ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਐਕਟੀਨੋਇਡਸ ਐਂਡ ਲੈਂਥੇਨੋਇਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਨਾਈਡਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ O ਹੈ ਇਹ ਅੱਜਕੱਲ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਲਿਖਦੇ ਆ NIDES। ਸੋ ਲੈਂਥੇਨਾਈਡਸ ਐਂਡ ਐਕਟੀਨਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। नो डाउट ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇਤੀ, ਬਟ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹੈਨਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰੱਖ ਰੱਖਿਆ ਬਾਹਰ। ਤਾਂ ਮੈਂਡਲੀਵ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਪਰੇਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਥੀਸ ਆਰ ਦ ਮੇਜਰ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਫ ਮੈਂਡਲੀਵਸ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਸੋ ਡਿਊ ਟੂ ਥੀਸ ਡਰਾਬੈਕਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਨ देयर वाज अ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਮੋਜ਼ਲੇ। ਉਸਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਸਨੇ ਅਗੇਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਸਨੇ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਟੋਮਿਕ ਮਾਸ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਸਰਨ ਹੈਗਾ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਮੋਜ਼ਲੇਜ਼ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੇਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰਸ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ when elements are arranged in the increasing atomic numbers the properties get repeated after a particular interval। ਤੇ ਉਹ particular interval ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 2 8 8 18 18 32 32 ਕਿ 2 8 8 18 18 32 32 ਇੰਨੀਆਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਬਾਅਦ सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट होनिया स्टार्ट हो जाती हैं एंड दिस इज कॉल्ड पीरियोडिसिटी। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਬਟ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਇਨਸ, ਸੋ ਬਿਟਸ ਐਂਡ ਬਾਈਟਸ ਕਰਦੇ ਆ ਬੱਚੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਚੈਪਟਰ ਚ ਕਰ ਲਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਆਂਟਮ ਨੰਬਰਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਿਲਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਲਈ 1s2 2s2 2p6 ਐਂਡ ਸੋ ਔਨ। ਅੱਜ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਆਫ ਵਿਦ ਮਾਡਰਨ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ ਕਿ how to write the electronic configurations of ions, cations and anions. So firstly we have to do that very carefully because it is very important. So bache, how to write the electronic configurations of ions, that is cations and anions. So bache ਧਿਆਨ ਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ configuration ਲਿਖਦੇ ਵਕਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹ anions ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, that comes in case of cations।
एंड जस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨ ਤੇ ਐਨਾਇਨ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਵੇਜ਼ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਟਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ, ਮਤਲਬ ਨਿਊਟਰਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਟਾਇਨ ਜਾਂ ਐਨਾਇਨ ਦੀ ਲਿਖੋ। ਲਾਈਕ ਫॉर एग्जांपल ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖੋ। ਐਟੋਮਿਕ ਨੰਬਰ ਇਜ਼ 11, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ਹੁਣ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗਾ? ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਹਨਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਟਾਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਐਨਾਇਨਸ ਬਣਦੇ ਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਗੇਨ ਕਰਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੂਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਪਲੱਸ ਚਾਰਜ, ਜਿੰਨੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਗੇਨ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਈਨਸ ਚਾਰਜ। ਤਾਂ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜੋ ਸ਼ੈਲ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾਓ। ਸੋ 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। ਸੋ ਬੱਚੇ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? ਥਰਡ ਸ਼ੈਲ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸੋਡੀਅਮ ਪਲੱਸ। ਅਗੇਨ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, calcium 2+। So calcium is atomic number 20, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2। So ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾਣੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ 2+ ਹੈ ਤੇ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? fourth one is the outermost shell। So ਸਾਰੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸੇਮ, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p6। so अपन दो इलेक्ट्रॉन्स 4s2 रिमूव करवाते and this is the electronic configuration of calcium 2+। ਹੁਣ ਆਪਾਂ अगेन मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਸ਼ੈਲ ਚੋਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਵਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਫੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਂਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਇਨਸ ਦੀ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਲੈਟ ਇਟ ਬੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੈ write down the electronic configuration of manganese +2। atomic number of manganese is 25। so पहला मैं manganese लिख रहा हूं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d5। ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d3। दो इलेक्ट्रॉन्स लूज करवाते। बट बच्चे दो इलेक्ट्रॉन्स 3d जो नहीं जाएंगे, बेशक एनर्जी के अकॉर्डिंग आप 3d ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਫਿਲ ਕਰਦੇ हैं, बट आउटर शैल ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ? फोर्थ। सो पहला फोर्थ शैल रिमूव होगा ना बच्चे। देखो मैं एटम बना रहा मैंगनीज का। पहला आपने फिल किया 1s2, फिर फिल किया आपने 2s, 2p6, फिर आप गए थर्ड शैल 3s2, 3p6। ਹੁਣ 3d ਭਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਫਿਲ ਕਰਤਾ? 4s2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਨੇ 3d ਦੀ ਫਿਲਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਤੇ 3d ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ 5 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਸੋਚੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਐਟਮ ਨੂੰ ਹੀਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ? 3d ਨੂੰ ਕਿ 4s ਨੂੰ? ਫੋਰਥ ਸ਼ੈਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀਟ ਲੱਗੇਗੀ ਬੱਚੇ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ 3d ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ੈਲ 'ਚ ਹੈ, ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਸ਼ੈਲ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? फोर्थ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇਹ ਰਿਮੂਵ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 3d5। ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ, 4 ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ 2 ਇੱਥੋਂ ਰਿਮੂਵ ਹੁੰਦੇ, 2 ਇੱਥੋਂ। ਗੈਟਿੰਗ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਫॉर एग्जांपल ਮੈਨੂੰ ਕਨਫੀਗਰੇਸ਼ਨ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ कॉपर +2। सो पहला मैं कॉपर 29 की कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। सो देखो इथों तक सेम 3p6, फिर कॉपर की होंगे 4s1, 3d10। याद है ना सब नू? एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन है 4s2, 3d9 की बजाय 4s1, 3d10। नाउ हुण मैं कॉपर +2 लिख रहे हैं, इथ तक सब कुछ सेम। दो इलेक्ट्रॉन्स मैं रिमूव करने हैं तो 4s1 चों 4s चों एक गया,
सो ये 0 रह गया 0 एंड 3D विल बी 9। ये लिखना नहीं ਹੁੰਦਾ वैसे ਆਪਾਂ ਨੇ जस्ट मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ 3p6 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3d 9 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਏਗਾ 4s ਚੋਂ, ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਾਏਗਾ 3d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਾਊ ਟੂ ਰਾਈਟ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨਸ ਆਫ केटायंस। always बच्चे, again I repeat, always make it a habit to write the electronic configurations of atoms first and then write the configuration of ions. Now so ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਆਪਾਂ anion ਦਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। anions ਦੀਆਂ configurations are very easy to write. Like for example, you are being asked write the configuration of O2 minus। we know कि oxygen ਦਾ atomic number is 8। so ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 1s2 2s2 2p4। so ਇਹ ਨਿਊਟਰਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ configuration ਹੈ। 2 ਨੈਗੇਟਿव ਬਣਨ ਲਈ ਉਹਨੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੀ ਕਰ ਲਏ ਗੇਨ। ਸੋ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਇੱਥੇ ਐਡ ਕਰ ਦੋ। सो 2p4 ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2p6। easy। next let it be we are asked the electronic configuration of Cl negative। क्लोरीन ਦਾ atomic number ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 17। सो पहले मैं 17 ਦੀ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। सो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। 1 नेगेटिव मींस एक इलेक्ट्रॉन गेन हो गया। सो 3p5 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬੱਚੇ 3p6। you getting a point? So this is how we write the electronic configurations of ions, that is cations and anions। again ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਮੇਕ ਇਟ ਅ ਹੈਬਿਟ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਐਟਮ ਦੀ ਲਿਖੋ, ਫਿਰ एनायन ਜਾਂ केटायन ਦੀ ਲਿਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਵੀ ਸ਼ੈਲ ਡੂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਆਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੇਸਡ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ, ਦੈਨ ਵੀਲ ਮੂਵ ਟੂ ਦ ਹਾਇਰ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਣਗੇ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਣਗੇ ਦੇਖੋ। give the number of unpaired electrons in। सो ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ unpaired electrons ਹੈ। ਨੰਬਰ 1 ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਿੰਪਲ ਐਟਮ ਦੀਆਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਲਫਰ। ਨੰਬਰ 2 ਮੈਗਨੀशियम +2। नंबर 3 मैंगनीज +2। नंबर 4 आयरन +2। नंबर 5 कॉपर +2। सो अपने एग्जांपल्स ले लिया बच्चे, है ना, कि इन्हां दे विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स फाइंड आउट करने अपने। सो वील स्टार्ट फ्रॉम सल्फर। नंबर 1 सल्फर एटॉमिक नंबर 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4। सो मैं 16 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते बच्चे। देखो इथों तक तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि तो फुली फिल्ड है। इन्हां दे तां सारे ऑर्बिटल फुल होणगे, हर एक दे विच दो दो इलेक्ट्रॉन्स। सो सारे पेयर्ड अप, सिर्फ लास्ट वाला चेक करना हुंदा आपां ने, ठीक है ना। सो हुण मैं इसको चेक करने हैं 3p 1 2 3 4। सो कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड हो गए मेरे को 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो मेरा आंसर क्या आएगा। सो सल्फर हैज 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। इजी। क्वेश्चन नंबर 2। सो आप मूव कर रहे हैं बच्चे सेकेंड क्वेश्चन के ऊपर। मैग्नीशियम +2। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर बच्चे 12। सो पहला मैं मैग्नीशियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखांगा 1s2 2s2 2p6 3s2। सो अगर कला मैग्नीशियम पूछा होता तो कितने अनपेयर्ड सी, कोई भी नहीं, क्योंकि देखो सारे दे सारे सबशेल्स कंप्लीट है, जिन्ने इलेक्ट्रॉन्स उन्हां च आ सकते हैं सारे पूरे है। हुण मैं +2 लई उन्हें 2 इलेक्ट्रॉन्स यूज करने हैं, आ 2 इलेक्ट्रॉन्स आप रिमूव करवाते, तो हुण कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, हुण भी कोई नहीं,
ये भी कंप्लीट है, ये भी कंप्लीट, ये भी कंप्लीट। सो आप लिखांगे मैग्नीशियम +2 हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। नाउ नेक्स्ट मैंगनीज +2। So बच्चे firstly we'll write for manganese atomic number 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d5। ਹੁਣ ਬੱਚੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਆਪਾਂ ਲੂਜ਼ ਕਰਵਾ ਦਾਂਗੇ +2 ਲਈ। ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਜਾਣਗੇ 4s ਵਾਲੇ। ਸੋ ਆ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ ਬਚ ਗਈ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਬ ਸ਼ੈਲਸ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। 3D ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ 10 ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स। ਸੋ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ 5। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ 5 ऑर्बिटल्स बनाते एंड वी नो कि 5 ਦੇ 5 इलेक्ट्रॉन्स एक एक ऑर्बिटल ਚ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ मैंगनीज +2 हैज 5 unpaired electrons। Done। Now we move on to the next, iron +2। atomic number of iron 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। सो बच्चे 2 है। सो मैं 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाते आउटर मोस्ट इथों तक सारे सबशेल्स कंप्लीट। 3D ਦੇ ਵਿੱਚ 6 इलेक्ट्रॉन्स। सो मैं 6 इलेक्ट्रॉन्स बना रहे हैं 1 2 3 4 5 and 6। सो मेरा आंसर कितना आ गया आयरन +2 हैज 4 unpaired electrons। Done। We move on to the next, copper +2। सो बच्चे कॉपर एटॉमिक नंबर 29। सो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d10। सो अगर अपन कॉपर च पूछया हुंदा किन्ने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है तो सिर्फ आह वाला एक, बाकी सारे सबशेल्स कंप्लीट है। ठीक है। सो कॉपर हैज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बट अपन किसदा पूछया कॉपर +2। सो हम मैं कॉपर +2 ਲਈ 2 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करवाने हैं। और 2 इलेक्ट्रॉन्स ਕਿਹੜੇ रिमूव होंगे बच्चे एक तो 4s1 और एक 3d ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। सो मेरे को 3d ਦੀ कॉन्फ़िगरेशन कितनी रहेगी 9। सो मैं 3d 9 फिल करूंगा जो इनकम्प्लीट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 and 9। सो इसके कोल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे 1। So copper +2 has 1 unpaired electron। So this is how to write the number of unpaired electrons in various species, cations, anions या फिर neutral atoms। ठीक है बच्चे। हुन इसकी एप्लीकेशन की है कि why do we study the number of unpaired या paired electrons। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕੈਮੀਕਲ ਬੌਂਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਬਟ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। इट इज बोथ अ पार्ट ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर एज वेल एज केमिकल बॉन्डिंग। तो जो तुसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वेश्चंस मैं बुक चो तुहानू देवांगा, अपने स्टार्ट करते हैं है ना इन यस्टरडेज होमवर्क। तो ओदे विच भी तुहानू क्वेश्चंस मिलणगे एंड दैट इज व्हाई आई एम कवरिंग द टॉपिक कि तुहानू क्वेश्चंस सॉल्व करन लगे कोई प्रॉब्लम ना आवे। ठीक है ना। सो हुण किद्दां आएंगे बच्चे क्वेश्चंस। सो बच्चे पेयर्ड एंड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की एप्लीकेशन की है कि इट टेल्स अस अबाउट द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अ सब्सटेंस। मैग्नेटिक कैरेक्टर of a species। so देखो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक बिहेवियर अपने पास जो केमिकल सब्सटेंसेस है वो 2 टाइप्स के होंगे हैं, एक डायामैग्नेटिक और एक पैरामैग्नेटिक। सो डिपेंडिंग अपॉन द मैग्नेटिक करैक्टर कि जो आप किसी सबसटेंस के कोल मैग्नेट लेके जाने हैं तो वो किवें बिहेव करता है, उस बिहेवियर के बेस पे सबसटेंसेस आर ऑफ 2 टाइप्स, डायामैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। नाउ हुन ये डायामैग्नेटिक ते पैरामैग्नेटिक हुंदे की है, पहला मैं तुहानू फिजिक्स वाली डेफिनेशन दसदा है ना जो आपां नू पता है। ठीक है। सो पैरामैग्नेटिक पहला
ਇਹ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦ ਸਬਸਟੈਂਸਸ ਵਿਚ ਆਰ attracted by the magnet, चाहे weakly चाहे strongly, but they are attracted by the magnet. Diamagnetic, ये बच्चे attract नहीं होंगे, in fact they are weakly repelled by the magnet. So they are weakly repelled by the magnet. जे रिपेल्ड ना भी हों तो एटलीस्ट वो अट्रैक्ट नहीं होंगे. पैरामैग्नेटिक दे आर अट्रैक्टेड. हुण बच्चे केमिस्ट्री दी डेफिनेशन की हुंदे ने ते क्यों अट्रैक्ट या क्यों रिपेल हुंदे ने, या क्यों अट्रैक्ट हुंदे ने या क्यों अट्रैक्ट नहीं हुंदे. ठीक है. सो जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हुंदे ने, दे हैव वन और मोर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सो जिन्ना कोल एक या एक तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड होंगे, दे विल बी पैरामैग्नेटिक, मतलब उन्होंने मैग्नेट अट्रैक्ट करेगी. आपां क्लासिकल एग्जांपल जदों भी मैग्नेट की गल आंदी है तो आपां किहड़े सबस्टांस अपने दिमाग च आंदा है? आयरन. आपां हुणे हुणे करांगे कि आयरन इन्ना स्ट्रांगली अट्रैक्ट क्यों हुंदा है. सो देखो, करता आपां ने लिया ही कि आयरन स्ट्रांगली अट्रैक्ट क्यों होएगा, क्योंकि उहदे कोल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बट आपां हुणे हुणे करांगे. सो देखो, जो डायमैग्नेटिक है, जेडे अट्रैक्ट नहीं होंगे, इन देम ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड. सो उन्होंने विच सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड अप होंगे बच्चे. ठीक है. सो दिस इज व्हाट यू मीन बाय डायमैग्नेटिज्म एंड पैरामैग्नेटिज्म. सो देखो बच्चे, डायमैग्नेटिक जो सब्सटेंस अट्रैक्ट नहीं होंगे, पैरामैग्नेटिक जो अट्रैक्ट होंगे है. रीजन, डायमैग्नेटिक सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होंगे ने, पैरामैग्नेटिक एक या एक तो ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे ने. हुण किहड़ा सब्सटेंस ज्यादा अट्रैक्ट होएगा वो दसना तो ईजी है, जिहदे कोल ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे. जिन्ने इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर्ड होंगे उन्ना सब्सटेंस ज्यादा पैरामैग्नेटिक होएगा, यानी कि उन्ना ही मैग्नेट वाल ज्यादा अट्रैक्ट होएगा. सो देखो हुण क्वेश्चंस किवें आएंगे. ये टॉपिक बच्चे नोट्स मिसिंग है. ठीक है ना. तो तुसी इस टॉपिक नु पेयर्ड अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशंस ऑफ कैटायंस एंड आयंस सब दे शॉर्ट नोट्स बना लियो. ठीक है ना. सो हुण देखो क्वेश्चंस किदां आएंगे. सो पहले टाइप दा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग substances are diamagnetic या पैरामैग्नेटिक. ठीक है. इन्हां विचों किहड़े सबस्टांसेस डायमैग्नेटिक है या किहड़े सबस्टांसेस पैरामैग्नेटिक है. सो आपां नूं ऑप्शंस दित्तियां होईयां हैं, मैग्नीशियम, पोटैशियम, स्कैंडियम 3+. ठीक है बच्चे. क्रोमियम 3+. सो आप चेक कर रहे हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर 12, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2. सो सारे सबशेल्स कंप्लीट है, सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है. हाफ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज, हाफ इलेक्ट्रॉन्स एंटी क्लॉकवाइज. सो मैग्नीशियम इज डायमैग्नेटिक इन नेचर. इसनू मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करोगी. ठीक है. नाउ सेकंड पे आओ बच्चे. सो सेकंड एग्जांपल इज पोटैशियम, एटॉमिक नंबर 19. चलो इत्थे तां बच्चे आपां नूं चेक करन दी भी जरूरत नहीं, क्योंकि 19 इज एन ऑड नंबर. ऑड नंबर दे विच सारे दे सारे पेयर्स तो पॉसिबल ही नहीं है. एक ना एक अनपेयर्ड तो होएगा ही होएगा. सो इट इज पैरामैग्नेटिक. बट स्टिल, सो 12 आप फिल करते, 3p6 18, 4s1. सो इत्थे तक सारे सबशेल्स आर कंप्लीट. सो जेड़ा आ एक इलेक्ट्रॉन है एक ही होएगा अनपेयर्ड. सो आप लिखांगे सिंस पोटैशियम हैज वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सो इट इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर. बट जी यदि मैग्नेट वाल अट्रैक्शन होएगी वो बहुत 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 वीक होएगी. ठीक है ना. नाउ सो थर्ड एग्जांपल पे आने हैं. थर्ड एग्जांपल इज स्कैंडियम 3+.
So third, scandium 3+, which is scandium, the atomic number is 21. ठीक है, so 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, so 20 फिल हो गए, so 3d1. ਹੁਣ ਆਪਾਂ 3+ करना है, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. सो 2 जाएंगे पहला 4s चों, एक जाएगा 3d चों, सो 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो गए बच्चे. सो सारे सबशेल्स आर फुल कंप्लीट. सो स्कैंडियम 3+ इज डायामैग्नेटिक इन नेचर. डन. क्रोमियम 3+. सो लास्ट, क्रोमियम 3+, एटॉमिक नंबर इज 24. सो मैं 18 फिल कर चुकिया. एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन होंगी है 4s1 3d5. ठीक है. नाउ हुण मैं 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. पहला एक इथों रिमूव होएगा, 2 इथों, सो 3d3. इथों तक सारे फुल है, सो 3d3. 1 2 3. सो आप क्या लिखांगे? Since there are 3 unpaired electrons, chromium 3+ will be paramagnetic in nature. Done बच्चे. Now ये समझ आया कि नहीं? ठीक है. So chromium 3+ will be paramagnetic in nature. हुण अगर अपन क्वेश्चन आ जाए कि इन्हां विचों किहड़ा ज्यादा पैरामैग्नेटिक है, सो देखो, सो अपन अगर क्वेश्चन आंदा है कि which of the following substances या species is more paramagnetic, Fe2+ या फिर Fe3+. सो अपन क्वेश्चन पूछा गया कि Fe2+ ਤੇ Fe3+ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਰਾਮੈਗਨੈਟਿਕ ਹੈ. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ कि दोनों विचों किसदे कोल ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है. जिहदे कोल ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होएगा. सो देखो, सो पहला मैं आयरन दी कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं. एटॉमिक नंबर 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. फाइन. सो बच्चे हुण आपां इस तो लिख दिंदे हैं पहला 2+. सो 2 रिमूव हो गए. 4s2 वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स में रिमूव करते. 3d6 की मैं कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं. सो ऑर्बिटल्स की फिलिंग कर रहे हैं आपां. 1 2 3 4 5 एंड 6. सो Fe2+ कोल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? 4. सो दिस हैज 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. मैं एक बार इत्थे लिख लिया. हुण आपां कॉन्फ़िगरेशन लिखांगे Fe3+ दी. सो पहला मैं उवें ही आयरन दी लिख लूंगा. कितनी सीगी? 4s2 3d6. हुण मैं Fe3+ लिख रहे हैं. 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने हैं. 2 इथों रिमूव हो गए, एक इथों रिमूव हो गया. कितने हो गए? 5. सो 3d5. 1 2 3 4 5. सो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है बच्चे? 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. So Fe3+ कुल कितने हैं? 5. So which species is more paramagnetic? Fe3+. So अपन लिखांगे since Fe3+ has more number of unpaired electrons, so it is more paramagnetic as compared to Fe2+. You getting a point? So this is how the questions are being asked on paramagnetism and diamagnetism. Fine. Now बच्चे the mathematical expression of magnetic character, कि केड़ा ज्यादा सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है, केड़ा डायमैग्नेटिक है, उसको अपन मैथमेटिकली किवें एक्सप्रेस करते हैं. जिवें कि अपन लेंथ ਨੂੰ एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स ऑफ मीटर्स, किलोमीटर्स, है ना. तो ਉਹਦਾ मैग्नेटिक कैरेक्टर किवें एक्सप्रेस किया जाता है? दैट टर्म इज नोन एज मैग्नेटिक मूवमेंट. दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक मूवमेंट, डिनोटेड बाय ऐदा दा सिंबल जिसको आप कहते हैं म्यू. इट इज प्रोनाउंस्ड एज म्यू, MU. ठीक है ना. सो मैग्नेटिक मूवमेंट की होंदी है? इट इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी विच एक्सप्रेसेस द मैग्नेटिक कैरेक्टर ऑफ अ सबस्टांस. यानी कि एक डायामैग्नेटिक सबस्टांस जिहदा कोई मैग्नेटिक कैरेक्टर नहीं हुंदा,
ਉਹਦੀ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 0 ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है उसकी जी मैग्नेटिक मूवमेंट है दैट विल बी ग्रेटर देन 0 यू गेटिंग अ पॉइंट फॉर्मूला की हुंदा बच्चे सो मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ n इंटू n प्लस 2 bm बच्चे bm की हुंदा है ये यूनिट्स है इसदे जिसनों आपां कहने हैं बोहर्स मैग्नीटॉन्स बोहर्स मैग्नीटॉन ਇਹ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਸਮਾਲ n ਹੈ ਇਹ n ਕੀ ਹੈ this is the number of unpaired electrons so this is the number of unpaired electrons n ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਦੇਖੋ ਹੁਣ अगर किसी दे विच नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है तो n की वैल्यू जो 0 पुट करोगे तो म्यू तो अपने आप ही 0 आ जाएगा बच्चे ठीक है ना सो नाउ हुन अगर अपन उत्थे क्वेश्चन आंदा है सो गेटिंग अ पॉइंट सो देखो सो नाउ इफ अ क्वेश्चन कम्स कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट of chromium 3+ ठीक है सो ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ chromium ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਕਨਫਿਗਰੇਸ਼ਨ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5 ਹੁਣ ਆਪਾਂ chromium 3+ ਦੀ ਲਿਖਾਂਗੇ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਦੋ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ 3d3 ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਫਿਲ ਹੈ सो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चे ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ 3D ਦੇ ਵਿੱਚ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स सो n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ n is equal to 3 ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੋਮੈਂਟ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰੂੰਗਾ mu is equal to under root of n into n plus 2 बोहर्स मैग्नेटॉन सो मैं n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ ਬੱਚੇ 3 into 3 plus 2 सो 3 plus 2 कितना आ गया 5 5 3s are 15 the under root is our magnetic moment so mu is equal to under root of 15 यानी कि it will be 4.9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਆ ਜਾਏਗਾ सॉरी 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ is 16 so 3.9 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਲਗਭਗ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ 3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 9 ਹੁੰਦਾ 4 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ 16 so this is under root of 15 अगर under root of 16 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ 4 ਆਂਦਾ then this will be 3.89 3.9 3.88 somewhere around that so this is your magnetic moment for chromium 3+ so just एक mathematical formula है under root of n into n plus 2 बोहर्स मैग्नेटॉन ਇਹ क्वेश्चन ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੈ कि दसो ਉਹਦੇ ਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਜਾਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਸਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਸੋ ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ ਦ ਮੋਸਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸੋ ਲਾਈਕ an ion of copper has mu is equal to 1.732 बोहर्स मैग्नेटॉन ठीक है what is the formula of the ion copper plus or copper 2+. सो बच्चे ਆਪਾਂ ਨੂੰ चलो अगर ये नहीं भी ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ठीक है अगर अपन सिंपली एन आयन ऑफ कॉपर या कोई भी अदर एलिमेंट ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇਤੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨਪੇਅਰਡ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੇ ਹੈ ਕਿਦਾਂ ਸੋ ਦੇਖੋ ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ mu is equal to under root of n into n plus 2 बोहर्स मैग्नेटॉन फाइन ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸੋ 1.732 is equal to under root of n into n plus
2 डन। इथों मैं n की वैल्यू कैलकुलेट करांगा। सो उसने लिए बच्चे आप एक बार फॉर द टाइम बीइंग कैलकुलेटर यूज कर लेंगे हैं, ठीक है ना। सो पहला मैं इसका स्क्वायर करूंगा 1.7 द स्क्वायर 1.73 टू द स्क्वायर चलो इट इज नियरली इक्वल टू 3। सो अपने को n की वैल्यू जो आ जाएगी कैलकुलेट करके दैट विल बी 1। सो मैं इथों 1 वैल्यू कैलकुलेट कर ली n की, ठीक है। सो मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने आ गए बच्चे 1। अब वैसे भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखो इतने 1 पुट करो 1 + 2 3 3 × 1 3 3 का अंडर रूट कितना होता है 1.732। सो 3 आ गया, ठीक है। सो मेरे को नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 1 आ गए। अपना क्वेश्चन ये भी हो सकता सी, अपना क्वेश्चन ये भी कह सकते सी एन आयन ऑफ अ मेटल या एन एटम हैज मैग्नेटिक मोमेंट n ना, कैलकुलेट द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो आपने कैलकुलेट कर ले, ठीक है। नाउ हुण आपने देखना है कि कॉपर प्लस ते कॉपर 2+ चों किहदे कोल एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। सो पहला आप कॉपर की कॉन्फिगरेशन लिखांगे। सो कॉपर 29 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। सो अगर मैं बच्चे लिखा कॉपर प्लस तो एक इलेक्ट्रॉन जाऊगा और इथों गया। सो सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड है। सो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है 0। सो ये तो हो नहीं सकता। हुण आप कॉपर +2 लिखते हैं, ठीक है। सो कॉपर +2 लिए एक इलेक्ट्रॉन इथों भी जाएगा। सो 3d9। सो मैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक कर रहे हैं कि ये देखो इको ही आ रहे हैं, आएगा इको ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सो देयर इज 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। सो अपना आंसर इज कॉपर 2+। You getting a point? So this is how we need to find out कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। अगेन आई रिपीट कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन्स पेयर्ड ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ਹੁੰਦੇ ਨੇ they have unpaired electrons। Diamagnetic substances are not attracted by the magnet but they are weakly repelled by the magnet। Paramagnetic substances are attracted by the magnet। ਹੁਣ ਉਹ ਕਿੰਨੇ attract ਹੋਣਗੇ that depends upon the number of unpaired electrons। जिन्ने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे उतना ज्यादा पैरामैग्नेटिक होएगा, उतना ही मैग्नेट वाल अट्रैक्ट ज्यादा होएगा बच्चे, ठीक है ना। सो दिस इज एन एप्लीकेशन ऑफ। सो बेसिकली ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹੁਨਸ रूल। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਹੁਨਸ रूल यूज कर रहे हैं, याद है ना। ਹੁਨਸ रूल ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ कि पहला ਆਪਾਂ ने सिंगली फिल करना है फिर पेयरिंग स्टार्ट करनी है। सो ये पैरामैग्नेटिक ते डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है ये बेसिकली ਆਪਾਂ फाइंड आउट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ हुनस रूल। सो इसके ऊपर बेस्ड सो बच्चे चंगी तरह नोट्स बना लियो, रिवाइज कर लियो। इसके ऊपर बेस्ड मैं तुहानू क्वेश्चंस देंगा ईदर फ्रॉम द असाइनमेंट और एज अ होमवर्क फ्रॉम द बुक। वो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं ताकि यू कैन बी वेरी थरो विद दिस टॉपिक, ठीक है। ते पीरियोडिक टेबल है जिहड़ा उसनू मैंडलीव्स दे डिफेक्ट्स तक अच्छी तरह रिवाइज कर लेना है। ते टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास वी शैल बी स्टार्टिंग ऑफ विद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਰਫਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਿਲਿੰਗ ਸਿਖਾਉਂਗਾ ਉਹਦੀ SPDF ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਾਈਟ ਪਲੇਨ ਸ਼ੀਟ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਫਲੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਦੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਊ ਦ ਪੀਰੀਓਡਿਕ ਟੇਬਲ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਫਾਰਮੂਲੇਟਡ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। Why do we fill it like 2 8 8 18 18 32 32 ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ ਬਾਅਦ ਸਿਮਿਲਰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਟਿਲ ਦੈਨ ਕੀਪ ਸਟੱਡਿੰਗ, ਕੀਪ ਰਿਵਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। Stay at your homes, be fit and fine. Thanks a lot.